ڈسکلیمر: یہ کہانی صرف تفریح اور ڈر پیدا کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس کا مقصد کسی شخص، مقام یا عقیدے کو نقصان پہنچانا نہیں۔ کہانی میں دکھائی گئی جگہ اور نام فکشنل ہے، لیکن اس کا اثر ان لوگوں تک ضرور پہنچتا ہے جو ان باتوں کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ اپنے گھر میں رات کے وقت تنہا نہ سنیے گا، کیونکہ کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ایک بار نہیں بلاتی۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان دفن ہوتے ہیں، اور کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں انسان اپنے آپ کو دفن کر دیتے ہیں۔ یہ کہانی کراچی کے ایک پرانی قبرستان کی ہے، جہاں ایک ایسا راز چھپا تھا جو زندہ لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ جن اپنا گھر کبھی خالی نہیں چھوڑتے، اور جو اس گھر کے قریب جاتا ہے وہ یا تو لوٹ کر نہیں آتا یا پھر واپس آتا ہے، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ آج کی کہانی ہے قبرستان کا کالا راز، ایک ایسی کہانی جو اگر سچ نہ بھی ہوتی تب بھی دل یہ مان نہیں پاتا کہ یہ صرف کہانی تھی۔ کراچی کا ایک پرانا علاقہ تھا، گارڈن کے پیچھے، جہاں ایک پرانا قبرستان تھا جس کا نام بھی لوگوں نے لینا چھوڑ دیا تھا۔ پچھلے 30 سال سے کوئی وہاں دفن نہیں ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس قبرستان کے اندر کچھ ایسے لوگ دفن کیے گئے تھے جن پہ کالا عمل کیا گیا تھا، جن لوگوں نے زندگی میں جادو، تعویذ اور جنوں کا کام کیا، ان کے جسم اور روح دونوں وہاں چین سے نہیں سوئے۔ اس قبرستان کے قریب ایک چھوٹا سا کرائے کا مکان تھا، وہاں رہتا تھا فراز، 27 سال کا ایک عام سا لڑکا۔ آفس کلرک تھا، زندگی میں کچھ خاص نہیں ہوا تھا، لیکن ایک چیز تھی، فراز کو ہمیشہ عجیب سپنے آتے تھے، سپنے جس میں وہ قبرستان کے اندر چلتا رہتا تھا اور ایک ہی آواز سنائی دیتی تھی، واپس مت آنا۔ فراز کے دوست مذاق میں کہتے تھے، بھائی تو ہارر موویز زیادہ دیکھتا ہے، لیکن فراز جانتا تھا کہ وہ سپنے فلم نہیں ہیں، وہ کسی حقیقت کا سگنل ہیں۔ ہر رات ایک ہی وقت 3:07 پہ اس کی نیند کھل جاتی، اور اس وقت اس کے کمرے کی کھڑکی سے ہمیشہ ٹھنڈ آتی تھی، جبکہ اس وقت ہوا چلتی ہی نہیں تھی۔ ایک دن فراز نے دیکھا کہ اس کے گھر کے پیچھے والے قبرستان میں کچھ لوگ رات کے ٹائم دیے جلا رہے ہیں۔ اس نے پہلے اگنور کیا، لیکن کیوریوسٹی اسے وہاں لے گئی۔ اگلے دن جب وہ اس راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ قبرستان کے کونے میں نئی کھدائی کے نشان ہیں، جیسے کسی نے قبر کھولی ہو۔ اس نے پاس جا کر دیکھا، مٹی گیلی تھی اور اوپر ایک چھوٹی سی کالے رنگ کی بوٹی رکھ کر ڈھک دی گئی تھی۔ اسی رات فراز نے سپنے میں دیکھا کہ ایک عورت سفید لباس میں اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا، لیکن آواز بالکل صاف تھی۔ جو مٹی تو نے دیکھی ہے وہ انسان کی نہیں تھی۔ فراز کا پسینہ چھوٹ گیا۔ اس نے آنکھ کھولی، 3:07۔ اس دفعہ اس نے کلیئرلی سنا کوئی اس کے کمرے کے اندر ہے۔ اس نے فلیش لائٹ آن کی، کوئی نہیں تھا، لیکن جب اس نے دروازے کے پاس دیکھا تو مٹی کے نشان تھے، جیسے کوئی قبر سے چل کر اندر آیا ہو۔ صبح وہ سیدھا مسجد گیا، مولوی صاحب کو سب بتایا۔ مولوی صاحب نے کہا، بیٹا یہ قبرستان کالا عمل کرنے والوں کا ہے، جو وہاں جاتا ہے اس کے ساتھ وہ لوگ چل کر آتے ہیں۔ فراز نے ڈر کے مارے دعا لی، لیکن اس کا دل نہیں مانا۔ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ وہاں واپس جائے گا، دیکھنے کے لیے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اگلی رات جب فراز قبرستان گیا تو اس نے دیکھا کہ 3 آدمی اندھیرے میں کچھ کھود رہے ہیں۔ ان کے آس پاس دیے جل رہے تھے اور بیچ میں ایک بچے کا کپڑا رکھا تھا۔ ایک آدمی نے کہا، جلدی کرو، صبح ہونے والی ہے۔ دوسرے نے کہا، جن کا وقت ختم ہو رہا ہے اس کا قہر ہم پر آئے گا۔ فراز نے فون سے ریکارڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا فون بند ہو گیا، اور اسی وقت اس کے پیچھے کسی نے دھیرے سے کہا، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک ہوا کا جھونکا آیا اور دیا بجھ گیا۔ اگلی سیکنڈ میں تینوں آدمی چیخنے لگے۔ ایک آدمی کا گلا دب گیا، دوسرا زمین پہ گرا، تیسرا بھاگ گیا۔ فراز نے صرف ایک چہرہ دیکھا، ایک کالی سایہ جسے کوئی انسانی شکل نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ بھاگ کر گھر آیا، سانس پھولنے لگی۔ اس نے دروازہ بند کیا، لیکن پیچھے سے آواز آئی، وہ جن اب تیرے ساتھ ہے۔ اگلی صبح جب فراز آفس گیا، لوگ کہتے، بھائی
तू ठीक नहीं लग रहा। उसकी आंखें सुर्ख थीं और उसकी आवाज़ बदल गई थी। उस दिन के बाद उसके आसपास अजीब चीज़ें होने लगीं। कंप्यूटर अपने आप ऑन ऑफ होने लगी और हर स्क्रीन पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा होता, अमल। वो समझ गया कि जिन सिर्फ कब्रिस्तान तक नहीं रुका, वो उसके घर तक आ गया है। उस रात फराज ने सपने में देखा कि उसके बेड के पास एक कब्र खुली हुई है और उसमें किसी को जिंदा दफनाया जा रहा है। जब वो झुककर देखता है तो उस कब्र में उसका खुद का चेहरा होता है। वो चीख कर उठता है, लेकिन उसके बेड के पास सच में मिट्टी बिखरी होती है और उस मिट्टी में वही काली बोटी दफन होती है जो उसने कब्रिस्तान में देखी थी। अब फराज के दिन और रात एक जैसे हो गए। कभी आवाजें, कभी पेड़ों के साए में कुछ हिलता हुआ दिखता। उसने एक आलिम को बुलाया। आलिम ने कहा, ये जिन कोई आम जिन नहीं है, इसे कोई बांध रहा था, लेकिन तू उस अमल के बीच में आ गया। आलिम ने कहा, अब इसका सिर्फ एक ही हल है, जहां से अमल शुरू हुआ था वहीं से खत्म करना होगा। फराज ने हिम्मत करके फैसला किया कि वो वापस कब्रिस्तान जाएगा। रात के 3 बजे एक छोटी टॉर्च के साथ वो अंदर गया। सब कुछ शांत था, लेकिन हवा में कुछ अजीब था, जैसे कोई देख रहा हो। जब वो उसी जगह पहुंचा जहां बोटी मिली थी, उसने देखा एक और बोटी दफन है और उस पर उसका नाम लिखा है, फराज बिन राशिद। उस मोमेंट उसके पैर जम गए। उसने मिट्टी हटाई और बोटी के अंदर एक पुराना तावीज़ मिला। उसने हाथ लगाया ही था कि पूरी जमीन हिलने लगी और एक आवाज आई, तूने मेरा घर तोड़ दिया, अब तू भी यहीं रहेगा। फराज भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। आलिम ने जो दुआ दी थी वो याद करके चिल्लाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हवा तेज हुई और कुछ पल बाद सब जगह सन्नाटा हो गया। जब सुबह लोगों ने देखा, कब्रिस्तान में एक नई कब्र बनी हुई थी जिस पर लिखा था फराज। लेकिन जब मौलवी ने उस जगह दुआ पढ़ी, उसने महसूस किया कि वो कब्र खाली है। सुबह का वक्त था, लेकिन हवा अब भी ठंडी थी, जैसे किसी ने धूप को रोका हो। कब्रिस्तान के आसपास के लोगों ने रात भर चीखें सुनी थी। किसी ने कुछ देखा नहीं, सबने बस सुना था कि कोई मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन सब जानते थे कि उस जगह पर कोई नहीं जाता। जब फराज गायब हुआ, उसकी चप्पल और फोन कब्रिस्तान के दरवाजे के पास मिली, लेकिन उसके पैर के निशान अंदर तक जा रहे थे, वापस नहीं आए। पुलिस ने सर्च किया, कुछ नहीं मिला। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, उस लड़के ने अमल वालों का काम बिगाड़ दिया, जिन ले गया उसे। कुछ दिन बाद फराज की छोटी बहन अरीबा अपने भाई की तलाश में वहां गई। वो रो के कहती, भाई इतने अच्छे थे, उनका क्या कसूर था। उसने मौलवी साहब से मदद मांगी। मौलवी साहब ने कहा, बेटा तेरे भाई ने जिन के अमल को तोड़ दिया, अब वो अमल पूरा होगा तभी वो जिन चैन पाएगा और तभी तेरा भाई भी आज़ाद होगा। अरीबा ने पूछा, अमल पूरा होने का मतलब? मौलवी साहब ने धीरे से कहा, किसी जिंदा इंसान की कुर्बानी। अरीबा का दिल काम गया, लेकिन उसे यकीन था कि उसका भाई जिंदा है। वो रोज शाम के वक्त कब्रिस्तान के पास जाकर दुआ करती, उसी जगह जहां फराज की चीजें मिली थीं। एक दिन उसने देखा एक सफेद बकरी कब्रिस्तान के अंदर जा रही है और उसके पीछे एक बूढ़ी औरत चल रही थी। उसका चेहरा छुपा हुआ था, हाथ में एक मिट्टी की थाली थी। अरीबा ने चुपके से उन्हें फॉलो किया। वो लोग उस जगह रुक गए जहां फराज की कब्र बनी थी और उस औरत ने कुछ पढ़कर जमीन पर खून गिरा दिया। अरीबा ने चिल्लाया, ये क्या कर रही हो तुम? औरत ने सर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल, और उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। उसने कहा, तेरा भाई मेरे मालिक के कहर का सबब बना। अब उसकी रूह चैन नहीं पाएगी जब तक उसका बदन पूरी तरह हमारे साथ ना मिले। अरीबा ने दौड़ लगाई, मस्जिद पहुंची और सब बताया। मौलवी साहब ने कहा, बेटा ये काला अमल है, जिन का काम। जो लोग कब्रिस्तान में इंसानी कुर्बानी देते हैं वो जिन को अपना गुलाम बनाते हैं, लेकिन अगर अमल तोड़ दिया जाए तो जिन आज़ाद हो जाता है और वो हर उस इंसान से बदला लेता है जो उसके रास्ते में आता है। मौलवी साहब ने कहा कि उस अमल को दोबारा करना होगा, मगर इस दफ़ा उल्टा, मतलब जिन के नाम से नहीं, अल्लाह के नाम से।
उस रात मौलवी साहब, अरीबा और 2 और आदमी कब्रिस्तान गए। पूरा अंधेरा था। मौलवी साहब ने सूरह अल बकरा पढ़ना शुरू की। ज़मीन हिलने लगी, मिट्टी से आवाज़ आई जैसे अंदर से कोई हिला रहा हो। फराज की कब्र से आवाज़ आई, अरीबा मुझे निकालो। अरीबा रोती हुई कब्र के पास गई, लेकिन मौलवी साहब ने रोका। बेटा, वो तेरा भाई नहीं है। लेकिन उसने देखा कि कब्र के अंदर से फराज का हाथ निकला हुआ है। उसने जोर से हाथ पकड़कर खींचा, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। अब वो एक अंधेरे कमरे में थी। कमरा पुराने कब्रिस्तान के अंदर था। वहाँ फराज जंजीरों में बंधा हुआ था। उसकी आंखें अंधी हो गई थीं और उसका चेहरा पीला। उसने कहा, अरीबा मुझे बचा लो, उस जिन ने मुझे अपना बना लिया है। पीछे से एक काली सी रोशनी चमकी। एक जिन का साया उठकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा ना इंसानी था ना जानवर का। उसने कहा, तुम लोगों ने मुझे परेशान किया, अब मैं सबको अपना बनाऊंगा। अरीबा ने कुरान की आयत पढ़नी शुरू की। जिन चीखने लगा, ये लफ्ज़ मुझे जला रहे हैं। कमरा हिलने लगा, फराज की जंजीर टूटने लगी। लेकिन जैसे ही अरीबा रुकी, जिन फिर से उभर गया। उसने फराज के गले में हाथ डाल दिया। तेरा खून अमल पूरा करेगा। अरीबा चिल्लाई, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। जिन ने चीख मारकर फराज को छोड़ा और हवा में मिल गया। अरीबा बेहोश हो गई। सुबह जब लोगों ने देखा, वो दोनों कब्रिस्तान के गेट के पास पड़े थे। मौलवी साहब ने कहा, अमल टूट गया, जिन जल गया। लेकिन कुछ चीज़ें अपने निशान छोड़ जाती हैं। फराज होश में था, लेकिन उसके हाथ पर एक काले निशान बने हुए थे, बिल्कुल वैसा जैसा जिन के हाथ पे था। उस दिन के बाद वो जगह बंद कर दी गई। सरकार ने उस कब्रिस्तान के आसपास दीवार बनवा दी। कोई अंदर नहीं जा सकता। लेकिन लोग कहते हैं कि रात के वक्त वहां से अब भी आवाज आती है, अरीबा मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। एक बार एक चौकीदार ने देखा कि दीवार के अंदर एक लड़का बैठकर रो रहा है। उसने कहा, बेटा कौन हो तुम? उसने सिर्फ इतना कहा, मैं फराज हूँ, और फिर हवा में गायब हो गया। उस दिन के बाद से किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की, और लोग कहते हैं उस कब्रिस्तान के अंदर अब भी एक छोटी सी बोती दफन है, जिसमें लिखा है कि जो जिन के अमल को छुए वो उसका हिस्सा बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी कराची के कब्रिस्तान के उस राज की कहानी, जहां जिन के अमल अधूरे रह गए थे और एक भाई बहन ने अनजाने में वो रास्ता खोल दिया जिसे सदियों पहले बंद किया गया था। फराज बच गया, लेकिन उसके हाथ पर वो काले निशान आज भी हैं। कहते हैं कि कभी कभी वो निशान जलते हैं, जैसे कोई अंदर से पुकार रहा हो, मैं वापस आ गया हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं सच में यकीन करता हूँ जिन्नात पर, और सब्सक्राइब ज़रूर करें।